Yes, very good morning, students. As you know that in our second book, Indian Economic Development, very interesting and very important chapter, employment and unemployment is going on. And I have already discussed along with you the theory of employment and the consequence of employment and also the demographic of employment. Today, I am the last part of this lessons and I conclude this lesson today. But before concluding, I want to tell you about some specific things about this lesson for your examination point of view. So today I will focus on the causes of unemployment in India. I have already told you the main causes of unemployment of India, but once again I repeat this, that the slow economic growth is the main reason behind the unemployment in India. Rapid growth of population, I have already told you. Agriculture, a seasonal occupation, because Indian agriculture provide only the seasonal occupation. Lack of irrigation facilities, this is also a very big things for the unemployment in India. Lack of technical education, I have already discussed along with you that in our India, our education system is not for the vocational training for the youth. So this is a very big issue about that. And joint family system today it's a very big issue about the unemployment, joint family system, and decay of cottage and small scale industry after independence. All the governments provide some facilities for the improving the cottage and small industry, but still today we are lacking behind in this sector. So this is also a very big reason behind the unemployment in India. Low saving and investment, this is also a very economic reason behind the unemployment of India. The comparison to the developed country in India, the saving ratio and the investment ratio is very low. So by this way we always try to be emphasis on the investment and try to be production, but low investment also increase the unemployment. Limited mobility of labor in our country, there are many reasons that labor cannot mobility from one place to another. So these are the main causes of unemployment in India. You can write down about if you think that other reasons also for the unemployment reason in India, you can also write them. Next one is economic and social consequences of unemployment. What are the economic consequences and what are the social consequences of the unemployment in India? इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ता है देश को? अगर मैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए पहला जो कॉन्सिक्वेंस होता है इसका हमारी इकोनॉमी में वो होता है नो यूटिलाइजेशंस ऑफ मैन पावर. मतलब जो हमारे पास मैन पावर है हम उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते हैं. अगर किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है तो जो मैन पावर है उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं हो पाता है. लॉस ऑफ आउटपुट, जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए वो भी हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है. लो कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए कैपिटल फॉर्मेशन इज ए वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ ए इकोनॉमी. ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट लो कैपिटल फॉर्मेशन, एंड व्हेन द लो कैपिटल फॉर्मेशन इज फाउंड इन एनी कंट्री the economic affected badly directly or indirectly. Next one is low productivity. This is also a very essential consequence of economic consequence of unemployment in our country. And the next one is social consequence. इसके social consequence क्या होते हैं, सामाजिक इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे ही हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बढ़ती है तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो लो हो जाती है बच्चों. जब किसी की आय नहीं होगी तो वो कैसे वो उन चीज़ों को भोग कर पाएगा जो उसके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं. तो लो क्वालिटी ऑफ लाइफ. नेक्स्ट वन इज ग्रेटर इनइक्वलिटी. ये एक बहुत वैसी स्थिति है जो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छी स्थिति नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से क्या पैदा करती है, एक बहुत ज़्यादा गैप पैदा कर देती है एक रिच और पुअर के बीच में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी लेके आती है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर इनइक्वलिटी. सोशल अनरेस्ट, और जब ऐसा होता है तो बच्चों समाज में सोशल अनरेस्ट की स्थिति हो जाती है, संघर्ष की स्थिति हो जाती है. जो अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति है वो क्या करेगा, जब उसके पास अर्निंग का कोई साधन नहीं है तो एक तरह से सोशल अनरेस्ट हो जाता है, सामाजिक असमानताएं बढ़ जाती हैं और द्वंद्व एक तरह से उत्पन्न हो जाता है, और एक खाई जो है ना अमीर और गरीब के बीच में वो और ज़्यादा बढ़ जाती है. नेक्स्ट वन इज क्लास स्ट्रगल. देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका सोशल कॉन्सिक्वेंस का. क्लास स्ट्रगल हो जाते हैं, मतलब समुदायों के बीच में स्ट्रगल शुरू हो जाता है, संघर्ष की स्थिति हो जाती है, क्राइम बढ़ता है. तो दिस इज ऑल्सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट. अच्छा देखिए अब इसके लिए हमारे पास सजेशंस क्या है. सपोज वी वांट टू बी इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इंडिया, व्हाट आर आवर सजेशन. देखिए सबसे पहला सजेशंस ये है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन. इफ द प्रोडक्शन विल इंक्रीज डेफिनेटली इट्स इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. मैंने आपको एक वाइसियस सर्किल बताया था अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वहीं से ये है कि आपको किसी भी तरह से प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा. प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा. इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ये देखिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मीन्स होता है बच्चों जी पर पर्सन जो प्रोडक्शन करता है उसकी
प्रोडक्टिविटी वो क्या कर रहा है। तो प्रोडक्टिविटी को भी हमें बढ़ाना होगा, हमें स्किल्ड लोगों को यहाँ पे बढ़ाना होगा, हमें स्किल ट्रेनिंग देनी होगी। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ हमें ध्यान देना होगा। मतलब कैपिटल फॉर्मेशन इज बेसिकली डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट। हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना होगा, जागरूक करना होगा। देखिए अभी कोविड-19 के समय ये पैंडेमिक जो चल रहा है, यहाँ पर सरकार को क्या करना चाहिए, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर जो है हमारे देश में एक बहुत बड़ा रोजगार के अवसर पैदा करते हैं हमारे देश के नागरिकों के लिए। बड़े एंटरप्रेन्योरशिप वो इतने रोजगार के अवसर पैदा नहीं करते जितने छोटे इन्वेस्टर्स करते हैं। तो हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए। हेल्प ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज वेरी एसेंशियल। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह हमें सरकार की तरफ ध्यान है इसका, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार के साधन कैसे विकसित किए जाएं। एजुकेशनल रिफॉर्म, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल रिफॉर्म की, जो अभी NCE 2020 आया है उसमें ये बात कही गई है कि हमें वोकेशनल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है उसके अलावा वी शुड बी फोकस ऑन द वोकेशनल एजुकेशन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हमें बढ़ानी होगी टेक्निक प्रोडक्शन की, जिससे और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री को बढ़ावा देना पड़ेगा, हमें जो इंडिविजुअल इंडस्ट्री के साथ साथ कोऑपरेटिव को ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे प्रोडक्शन बढ़े। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, हमें एम्प्लॉयड जो प्रोसेस है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। दिस आर आवर सजेशंस। After independence, our government has taken many steps to eradicate the unemployment from India, and many programs and policies are going on for the eradication of the unemployment. But appropriate result has not come. बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। 1950 से जितनी भी हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी, सब पर यह फोकस किया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जाए। लेकिन आज भी हम इस आपदा को झेल रहे हैं कि हमारे देश में युवा बेरोजगार हैं, और जब युवा बेरोजगार होता है तो किसी भी देश के लिए ये स्थिति बहुत खतरनाक होती है। बहुत सारे प्रोग्राम बने। देखिए हमारे देश में 1950 के बाद ट्राइसम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, JRY, IRDP, SGSY, SRGY, स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना, बहुत सारे प्रोग्राम, लगभग 50 प्रोग्राम ऐसे बने जो सरकार ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बढ़ावा देने के लिए किए। IRDP कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए और उससे सेल्फ एम्प्लॉयड होइए। तो सरकार की जो प्रोग्राम पॉलिसीज़ हैं, इनका मेन फोकस था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने की तरफ। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें, जब से मोदी सरकार आई है, तो 3 चीज़ों पे बच्चों बहुत फोकस है। नंबर 1 स्किल इंडिया, नंबर 2 मेक इन इंडिया, और नंबर 3 स्टार्टअप। These are the 3 main programs are going on for this Modi government for the enhancing this employment opportunity in India, for basically to increase the technical education. Skill India हो, चाहे Make in India हो, चाहे startup program हो, to increase the small investors in India. So these are the chapters which I have told you. ये मैं यहीं पर बच्चों आज समाप्त करूँगा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि फ्रॉम दिस पैंडेमिक कोविड-19 जो आपने पूरा समय मार्च से लेकर के यहाँ तक, मैंने आपका 80% सिलेबस इसी तरह से कवर किया, क्योंकि अब मेरा बच्चों यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब मैं JSC कोरबा में ज्वाइन करूँगा 1 तारीख को। तो ये मेरा बिल्कुल लास्ट चैप्टर था। इस चैप्टर के बाद मैं आगे इसको नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगा। सो यू शुड ट्राई टू बी कैरी ऑन योर स्टडी, बट आई एम स्टिल इन RGNV. So whenever you have any problem in this subject, you can ask me, because macroeconomics is some typical parts. In Indian economic development, these are the only the theory. So you are most welcome. If you have any problem, you can ask me. So thank you very much. You have spent a great time along with me. Have a good day. Be safe. Be healthy. Thank you very much.